इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अ लव स्टोरी जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है और 3 लोगों के बीच में होती है ये लव स्टोरी। देखा मैंने बोला 3 लोग। हाँ, थैंक यू। तो और इसमें ये एक यूनिवर्सल किस्म की कहानी है जो आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ विच कंट्री एंड विच रिलीजन एंड विच caste or religion or I mean or whatever community you belong to, it can appeal to all kinds of people. And the byline is that the film happens to be between 3 men. Having said that, जो emotions इन लोगों के बीच में feel किए जाते हैं, they are universal. So it doesn't really matter whether they are men or women. So that's one of the reasons we all did this film, because it has a very universal voice. And it's a love story in which किसी का दिल टूटता है और किसी का about love, तो जो baggage the feeling love creates, it comes with a lot of baggage, and that's what the film is about. And as he said, it doesn't matter what gender you are, तो इसलिए LOEV या LOV लिखो, love ही होता है। और it may be between 2 guys, 2 girls, a guy and a girl, it's all the same emotion, और वही emotion के बारे में फिल्म। ओके, क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर को करने के लिए? काफी एक अलग तरीके का कैरेक्टर। See, I had to put on a lot of weight for this role because I'm playing a 38-40-year-old guy. He's a very depressed kind of a guy. He's the kind of guy वो एक मैनहट्टन में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, and he's the kind of a guy जो the pressure of work is kind of gotten to him. He's let himself go, in that way, like physically. And also the thing is कि वो एक बहुत ही repressed और depressed किस्म का आदमी है. He's leading a double life. जो वो असल में है, जो जिससे वो असल में प्यार करना चाहता है, वो he cannot be open about that because he's a brown man in the States. So being a minority community in the States, उसके ऊपर से then being homosexual is something which he is so not comfortable being out in the open about. So he's leading a double life. He's looking for love. प्यार का भूखा तो नहीं कह सकते, but he's looking for love. He's not happy. He's a very depressive individual. So इसकी detailing ये करनी पड़ी थी. I had to find out. I had to really put across the emotion of an actor, of an individual जो थोड़ा सा जिंदगी से थोड़ा सा मतलब ना, he's a little in his personal life he's not content. So I had to try to portray this in the best way I thought possible. So और in terms of preparation, मुझे लगता है कि हमें ऐसी कुछ स्टडी नहीं करनी पड़ी कि let's see how a gay man is or let's see some mannerisms. ऐसा कुछ नहीं था. We all treat this film and all these characters as normal people. It's just that they are gay. It's just that my character happens to like another man. That is it. बाकी मुझे लगता है स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा हमें स्टडी करना पड़ा और कैरेक्टर्स का बहुत ज़्यादा स्टडी हमें करना पड़ा. लाइक फॉर एग्जांपल मेरा और ध्रुव का जो कैरेक्टर है, इन द फिल्म वी आर लिविंग टुगेदर, वी आर इन अ रिलेशनशिप सिंस सम अमाउंट ऑफ टाइम. तो उनकी हिस्ट्री जो है वो हमने दिखाई नहीं है, लेकिन जब आप उन दोनों को देखते हो तो समझ आनी चाहिए कि इन दोनों की क्या हिस्ट्री है. What sort of a comfort level are they sharing? What phase of their relationship are they in? So with regards to that, we had to do a lot of rehearsals not of the scenes which we have done in the film, but what happened before. So me and Dhruv had actually gone on a date, a proper date, and our director was there who was observing everything and to just get that comfort level. तो उस तरह का हमें प्रिपरेशन करना पड़ा ऑफ द कैरेक्टर. काफ़ी लेयर्ड कैरेक्टर्स है, कोई भी 2 dimensional नहीं है, they are all 3 dimensional. Some, I think my character has a 4th dimension also, if I can say that. So we had to get those nuances right, which gave justice to the writing, क्योंकि writing इतनी कड़क थी और सुधांशु इतना क्लियर था कि किस तरीके से उसको ये फिल्म शूट करना है. काफ़ी सीन्स 1 टेक सीन्स है, तो 10, 12, 15 मिनट, इनफैक्ट 17 मिनट की टेक्स है. जो एक सीन है वो कैमरा रोल चल ही रहा है. सो इन ऑर्डर, और हमारे पास उतना वक्त नहीं था क्योंकि हमें 16 या 17 दिन में ये शूट पूरा कंप्लीट करना ही था. देयर वाज नो स्कोप कि सेट पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें.
ठीक है आज नहीं आ रहा है तो कल वापस आके नहीं, कल लोकेशन नहीं है, जो करना है आज ही करना है. तो वी हैड टू बी वेरी कंफर्टेबल, वी हैड टू नो द कैरेक्टर्स. तो काफ़ी हमने डिस्कशंस की अबाउट द हिस्ट्री, वो कहाँ से आ रहा है उसकी ज़िंदगी में, स्कूल में वो कैसा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नहीं, जैसे कि काफ़ी हम गे लोग से मिलते हैं तो उनके बात करने का तरीका अलग होता है, कुछ और बोलते हैं जो भी, जैसे कि तो इस तरीके से कुछ डिटेलिंग करनी पड़ी, कुछ नहीं, लेकिन क्या है कि हर उनको समझने के लिए कैरेक्टर को अगर आप प्ले कर रहे हो तो फिर आप उनसे मिलते हैं, बात करते हैं यार कि कैसे है. नहीं, लेकिन क्या है कि आप जनरलाइज तो नहीं कर सकते हो ना कि गे आदमी ऐसे ही होता है, एक पर्टिकुलर गे आदमी ये ऐसे होता है, दूसरा आदमी अलग होता है. So we're all different kinds of people. So we are straight guys, but Shiv is very different from me. His mannerisms, his way of walking, of talking is different from what I am. So it's the same with gay people. तो the hints were all in the script. जैसे मैंने आपको कहा कि script पे बहुत ज़्यादा ध्यान हमें as actors we had to really know the whole script through and through. तो जो कुछ भी था वो script में ही था. शिव, आपसे जानना चाहेंगे इस तरीके का कैरेक्टर को क्यों प्ले करा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं प्ले करते हैं, ऐसे कैरेक्टर से दूर हटते हैं, शायद उनको अपनी इमेज या फैन फॉलोइंग पे उनको लगता है कि असर पड़ता है. तो आपने ये कैरेक्टर क्यों चुना, क्योंकि इसकी कोई खास वजह? क्योंकि हर्ड मेंटालिटी में घुसना मेरा पहले दिन से कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था. आई लाइक टू क्रिएट माई ओन पाथ एंड आई लाइक टू डू स्टफ विच एक्साइट्स मी एज एन एक्टर. तो बाकी जो करे वो करे, मुझे उससे कुछ इंटरेस्ट नहीं है. मैं अपना काम देखता हूँ और मुझे ये स्क्रिप्ट बहुत ही पसंद आई एंड इट डिडंट मैटर टू मी व्हाट अदर्स आर डूइंग. सो दिस स्क्रिप्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई वांटेड टू प्ले दिस पार्ट, इसलिए मैंने किया. नहीं तो लगा कहीं ना कहीं कि मतलब यार किस तरीके से कुछ इस पे लोगों पे या फैंस फॉलोइंग पे इस पे कुछ असर पड़ सकता है? मैं ऐसी चीज़ें नहीं सोचता हूँ, बिकॉज मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता हूँ और लोगों को मेरे हिसाब से ऑडियंस जो हमारी है बहुत इंटेलिजेंट है. उनको पता रहता है अगर उनको कुछ अच्छा देखने को मिले, इंटरेस्टिंग देखने को मिले. तो एज एन एक्टर आपकी ड्यूटी है, एज इट्स योर जॉब, दैट द पीपल हु आर टेकिंग दैट टाइम आउट, their precious time to either buy a ticket in the hall to go and see you, or they are subscribing to Netflix to watch your film and paying their money, whatever it is. आपकी ड्यूटी है कि आप उनका टाइम और उनका पैसा बर्बाद ना करें. तो आई थिंक it's in every duty of every actor to kind of do the best he can so that the people who are taking their time out to watch him or her, they feel satisfied. नहीं, मुझे लगता है कि why should we be prejudiced, ऐसा लगता है. इवन आप कह रहे हो कि काफ़ी एक्टर्स दे स्टे अवे फ्रॉम दिस. प्रॉबेबली ऐसे हो सकता है कि इतना जेन्युइन डिपिक्शन उनको ऑफर नहीं हुआ है, ऐसा हो सकता है. क्योंकि हमारे फिल्मों में भी काफ़ी सालों से, काफ़ी बरसों से a homosexual man has been portrayed in a very stereotypical way just for comic relief or with very flashy clothes. और तो ये लोग ऐसे नहीं होते यार, सब ऐसे नहीं होते. तो मे बी अ फिल्म लाइक दिस वॉजन ऑफर्ड टू देम, इसलिए दे डिडंट गो डाउन दैट रोड. लेकिन हमें कुछ कारण ही नहीं था. द स्क्रिप्ट डिडंट अलाउ अस टू से नो, द डायरेक्टर डिडंट लीव एनी स्टोन अनटर्न. तो कुछ मौका ही नहीं मिला ऐसे सोचने का कि नहीं यार शायद मैं ऐसे करूँगा तो बहुत कम बारी अच्छी स्क्रिप्ट सुनने को मिलती है. तो जब आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट सुनने को मिली है जिसमें बहुत ही एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी गई है कम्युनिटी की, एंड बहुत ही अच्छी कैरेक्टराइजेशन है, तो एज एक्टर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से नो. सो आई थिंक द क्वेश्चन इज नॉट दैट वेदर this is a film about gay men or gay women. The question is that is it a good film, is it worth watching or not? And we believe, and especially now that the film has been released, we believe that we made a good product. We're very proud of it. हमें all over the world से हमें messages मिल रही हैं. तो that is the question कि क्या ये love story जो है, can it appeal to people from all walks of life? And we think it can, and we have proven and we have proof now because people have been seeing it, and different people from different walks of life, whether they're straight or they're bi or they're or they're gay or they're old or young, everyone universally is liking the film. Okay, और क्या मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या फैमिली फ्रेंड्स एंड फैंस के क्या जवाब आ रहे हैं? इट्स टच वुड, इट्स बिन ऑल गुड. जो जिस वजह से हमने ये फिल्म बनाई उनको वो पॉइंट पकड़ में आ रहा है.
which is the most important thing. औरतों को काफ़ी पसंद आ रही है तो जी, surprisingly there's a lot of women who are ऐसे really मैसेजेस कुछ आए कुछ नहीं, लोगों को पसंद आ रही है पसंद आ फिल्म, रही है। उनको ये लग, वही जैसे मैं आपको बताया, उनको लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि हमने एक मॉकरी नहीं की है. हाँ We haven't made a mockery and we have done a very we've put out a very honest and a true representation और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हमने सब्जेक्ट को ट्रीट किया है, तो लोगों को वो बात बहुत पसंद आ रही है. और हम प्रीच भी नहीं कर रहे, किसी को हम फोर्स नहीं कर रहे कि भाई आपका नज़रिया बदल लो, ऐसा भी हमारा कुछ कहना नहीं है. हमें वी बिलीव्ड इन द स्टोरी, हमें ये फिल्म करनी थी दिल से, हमने वो बनाई. और मुझे लगता है वो जेन्युइनिटी जो स्क्रिप्ट में थी विच ट्रांसलेटेड ऑन टू आवर परफॉर्मेंस एंड नाउ इज ट्रांसलेटिंग टू द ऑडियंस, उन्हें भी पकड़ में आ रहा है कि एज शिव सेड कि ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है. आप कोई भी चीज़ कन्विंसिंगली नहीं करोगे तो उनको झट से पता चल जाता है, तो उनको वो जेन्युइनिटी अच्छी आ रही है. देयर हैव, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी इज लाइकिंग द फिल्म, देयर आर अ फ्यू पीपल हु हैव कम एंड सेड कि यू नो ओके एज अ फिल्म ऑन द होल मे बी यू नो I have seen better films, लेकिन your attempt is very good. I respect that attempt. I respect your courage and your outlook towards this whole thing, and I respect that and I can connect to that. और इसी वजह से I'm going to recommend this to 10 people or 20 people, or I'm going to tweet about it, or I'm going to put it on Instagram or whatever it is. We have not, हम कोई मैसेज तो देने के लिए हमने फिल्म बनाई नहीं है, फिल्म के अंदर कुछ है ऐसा कोई हिडन मैसेज जो देखने के बाद नहीं यार, फिर मैसेज यही है कि प्यार प्यार होता है. And it is, we have not made a film with a view to give this message. अगर लोगों को मैसेज लेनी है, if it really hits them, then it translates into a message. आप वो टेक्स्ट मैसेज ऐसा नहीं होता है कि आप बैठ के सेंड करो, ऐसा नहीं हो सकता. यू कांट फोर्स एनीबडी. तो आई थिंक if there is a change which comes off of this, we will be extremely happy as artists and as people. But the message is कि प्यार प्यार होता है और it's wonderful. It's a love story at the end of the day, which like I told you earlier, it completely breaks borders and genders, transcends genders. So हमने कोई मैसेज को नज़र सोचते हुए ये फिल्म तो बनाई नहीं, लेकिन अगर लोगों को इस फिल्म से उनको people have a different interpretation. It's a subjective medium. तो let's hope people like it, and people already liking it. So आप भी फिल्म देखिए. ओके, काफ़ी रियल लोकेशंस लिए गए हैं फिल्म के अंदर, तो उसके बारे में सब रियली है. हाँ जी, वही उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए. क्या एक्सपीरियंस था, कहाँ पे शूट किया, थोड़ा लोकेशन और शूटिंग एक्सपीरियंस. We shot in Mahabaleshwar, we shot in Mumbai, and we shot a lot on the road. जी. तो काफ़ी ऑन द रोड, प्लस मुझे लगता है लोकेशन, वो जो ओपनिंग सीन है वो ऐसा है कि मेरा और ध्रुव के घर में है और लाइट चली गई है और काफ़ी गर्मी है. तो सुधांशु ने एक्चुअली उस अपार्टमेंट में सब एसीज फैंस सब बंद कर दिया था और देयर वाज नो द सीन रिक्वायर्ड अस टू बी रियली स्वेटी. तो उसका मेकअप नहीं हुआ, वी वर नेचुरली वी वर स्वेटिंग. और जो पूरी क्रू है उनको दे वर ऑल क्वाइट पिस्ड एट सुधांशु कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. उसके ऊपर से इतना बड़ा लंबा टेक था. वो एक है. फिर महाबलेश्वर में देयर इज अ हाइकिंग सीक्वेंस, ये लोग हाइक करते महाबलेश्वर में चले जाते, तो some very difficult locations but very beautiful locations. But काफ़ी अलग very interesting locations. बहुत मेहनत करके प्रोडक्शन ने ये लोकेशंस को ढूंढा है. और हर एक का एक रीज़न है. ये बम्बई में ये क्यों हो रहा है या ये महाबलेश्वर क्यों जाते हैं. देयर आर रीजंस फॉर दैट व्हिच यू हैव टू वॉच द फिल्म, देन ओनली यू नो व्हाई दीज लोकेशंस आर चोजन. ओके, काफ़ी फेस्टिवल में भी गई है फिल्म, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे. हाँ जी, काफ़ी फेस्टिवल में गई है फिल्म. बहुत सारे फेस्टिवल में गई है. लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड फिल्म पसंद आ रही है, इसीलिए अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स फिल्म को बुला रहे हैं और फिल्म को दिखा रहे हैं. बट अब नेटफ्लिक्स पे है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 180 कंट्रीज़ में ये फिल्म आपको देखने को मिल सकती है, 22 लैंग्वेजेस में भी. जी. ओके, बड़े पर्दे पे आपने इस फिल्म को रिलीज़ नहीं किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि नेटफ्लिक्स भी आपने किया है. ये इसलिए क्योंकि देखिए नेटफ्लिक्स के ज़रिए हम 180 कंट्रीज़ में जा सकते हैं, जो बड़े पर्दे में इन सबसे बड़ी इंडियन फिल्म भी जो है वो नहीं जा सकती. तो नेटफ्लिक्स की रीच जो है वो बहुत ही सुपीरियर है. एंड आई थिंक अ फिल्म लाइक दिस नीडेड अ वाइड रीच more than coming on the big screen. It needed more people to see it. और वो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया हमने जब नेटफ्लिक्स को ये डील उनके साथ हमने करी. Now we are getting messages from people in Europe, South America,
Eastern Europe, you know, so different America, parts of our own country. Yeah. तो yeah, I think it was, हमें पता नहीं था जब हम बना रहे थे कि इसका क्या होगा, कैसे करेंगे. We just took it one step at a time. और before we could think of a theatrical, I think Netflix approached us and we said ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्यों ना. We're very happy with it. Yeah, we're very happy that happened, क्योंकि एक एक longevity भी मिलती है, क्योंकि थिएटरों में एक दो हफ्ते चलेगी फिर चली जाएगी, but this is there for a long amount of time, so people can see it wherever they want. And this film is also a film which should be viewed in privacy. Many people will prefer that, so Netflix facilitates that for the audiences as well. Yeah. जैसे कि फिल्म में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एक नहीं है साथ में जी. उनके बारे में उनकी कहीं ना कोई कमी कोई कितना मिस कर रहे हैं. देखिए फॉर मी तो ध्रुव इज़ ऑलवेज गोना बी हियर बिकॉज ऑफ दिस फिल्म. इस फिल्म की मेमोरी की वजह से ध्रुव इज़ ऑलवेज गोना बी विद अस. वी certainly it's a very big loss for us to not have Dhruv with us. But having said that, ये ध्रुव का बहुत ही memorable and बहुत ही बेहतरीन, I think his best performance till date. And मतलब he has left us wanting more. Yeah. काफ़ी लोग जब फिल्म देखते हैं तो वो they wish that Dhruv was here, and you know, but he's done such a wonderful job in this film, and हमारे लिए Dhruv is always going to be alive through this film. क्या मेमोरीज थी, कुछ मेमोरीज थी कुछ ध्रुव के साथ में जो आपने शूटिंग करी है सेट पे? अरे पूरी फिल्म ही एक मतलब अभी एक मेमोरी जैसा वो लग रहा है. इट वाज शॉट सो लॉन्ग बैक और द जर्नी वी हैड सो फार हैज बीन इनक्रेडिबल. और यू नो इट वेंट सो फास्ट. 2014 में हमने ये फिल्म शूट करी है. 2015 में, और 15 में टैलेंट में इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ फेस्टिवल में, और नाउ वी आर ऑन नेटफ्लिक्स. तो वी हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज शूटिंग दिस फिल्म बिकॉज इट वाज अ वेरी टफ फिल्म टू शूट. तो इट्स डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट वन, बट व्हाटएवर वी अचीव्ड आउट ऑफ दोज मेमोरीज इज इन फ्रंट ऑफ यू. तो जाके देखिएगा ज़रूर, आप फिल्म जरूर देखिए जी. और क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इसके बाद में? कुछ नहीं सर, बस एक्टिंग करेंगे हम. एक्टिंग की दुकान चालू है हमारी, तो एक्टिंग करेंगे जी. और क्या मतलब कहाँ और देखने को मिलेंगे आप? I have a film, I have a short film called Jai Mata Di, which is a Mother's Day short film that's releasing tomorrow. तो एक तो वो है, and या मैंने और एक फिल्म की है, तनुजा चंद्रा जी ने डायरेक्ट करी है फिल्म. तो उसका फिल्म शूटिंग अभी भी चालू है, 2-3 दिन बाकी है, तो जब आएगी तब देखिए. ओके, और क्या कहना चाहेंगे जाते थे दर्शकों को? बस हमारी फिल्म देखिए लव. इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स. पहला महीना फ्री है नेटफ्लिक्स का. तो सब्सक्राइब करके हमारी फिल्म देख लीजिए, एंड प्लीज़ शेयर the news about our film on our Facebook page is Love Film, LOEVFILM. So find us on Facebook, try to connect with us, and hopefully, you know, after you watch the film, we can have a discussion about it. Yes, we will. Thank you. Thank you.